શ્રી કુંદ આચાર્ય વિરચિત સમય સાહજિક પરમાગમ એમાં 14 નંબરની ગાથા ઉપર આપણે સ્વાધ્યાય ચાલે છે. એમાં આત્માના 5 શું આપ્યા છે? વિશેષણ આપ્યા છે. આત્માના સ્વરૂપને સમજાવવા માટે 5 વિશેષણ આપ્યા છે. આ બધું સ્પષ્ટ. અનન્ય, નિયત, અવિશેષ અને અણસંગ. એમાં આપણે 3 બોલ લઈ લીધા છે, 2 બાકી છે. ફરીને આ વાતથી શું આપણને થવી જોઈએ? હું કેવો છું, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું? આ એ પ્રશ્નના ઉત્તર છે કે મારું ખરું સ્વરૂપ શું છે. જ્યાં જ્યાં મેં મારું અસ્તિત્વ માન્યું છે એ બધું કેવું છે? એ ખરેખર અસ્તિત્વ મારું છે જ નહીં. એ તો એક સંયોગ રૂપે છે અને ક્યારે છૂટશે એનો ભરોસો નથી. શરીરને મારાપણે મેં માન્યું છે. એ કેવું છે? શરીર અનાદિનું છે ને? અનાદિનું તો છે ને શરીર. અરે ભાઈ, અનાદિનું આ શરીર તો નથી. એ બધા પલટતા થયા છે. તારું તો ખાલી આ સંયોગ હમણાં આ ભાવથી મેળવ્યો છે. અને એ પણ ક્યાં સુધી રહેવાનો છે? આયુ કર્મના એ પૂરું થતા ક્યારે ભરોસો નથી. તો તારું હોય તારાથી કેમ છૂટું પડે? જુદું કેમ પડે? એ તો મારું અસ્તિત્વ નથી. તો શું ખરું અસ્તિત્વ છે? એ વાત કરતા કે આ સમયે પણ તું. આ વાત શું કામ ખાસ લે કે 24 કલાક આપણા ભાવોમાં શું ભર્યું હોય છે? કોઈ પણ પૂછે, ધાર્મિક રીતે પણ પૂછે તો કઈ ગતિમાં છો તમે? તો પહેલો જવાબ શું આવશે? મનુષ્ય ગતિ. કોઈ કે તમને કેટલા કર્મો છે? તો શું કરે ભાઈ? 8 કર્મોથી અત્યારના હું કેવો છું? બંધાયેલો છું. તારું શરીર કયું છે અત્યારના? કે નેચરલી ઔદારિક શરીર જ હોય, કારણ કે હું શેમાં છું? મનુષ્ય ગતિમાં. આખી આપણી ઓળખાણ આપણે શેનાથી આપીએ છીએ? જેમાં મેં મારું અસ્તિત્વ માન્યું છે એવા સંયોગથી આપીએ છીએ. કારણ કે એમાં જ આપણે આપણું અસ્તિત્વ માન્યું છે. અને તેથી એ મય જ જાણે હું છું. એના વગર જાણે મારું અસ્તિત્વ. કોઈને પણ એમ કહીએ કે આ શરીર નહીં રહે, હા એવું અશુભ બોલો નહીં. આમ કેટલું એકત્વ પણ એમાં છે. આપણે કદાચ કોઈ ગાંઠ નીકળી છે, બાયોપ્સી માટે મોકલી, હજી એનું તો રિપોર્ટ આવે કે ના આવે એ પેલા શું થશે આપણને? ભય બહુ જ વિચારું. અસાતાનો ઉદય આવ્યો નથી ને ભય ચાલુ થઈ ગયો. ત્યારે વિચાર નથી આવતો શું આ કોઈ જીવન હોય કે નિરંતર ભયની નીચે જીવવું? આપણે બધા ભયથી નીચે નથી જીવતા ને? મેં મારા જ્યોતિષીને પૂછ્યું છે કે તમારે 90 વર્ષ સુધી કોઈ ચિંતા નથી. તમારે કોઈનું સાંભળશો, કદાચ એકવાર હા પાડશો, પણ અંદરનો ભય ક્યારે નહીં જાય. જે કોઈ સંયોગ મેળા છે એની શું ગેરંટી છે? ના, એ તો હજી ઘણી વાર છે ને. પણ મેં એવું મારું સાઉન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે કે મારી નહીં, મેં સાઉન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એવું કર્યું છે કે મારા લાઈફ સુધી નહીં, મારી 72 પેઢી સુધી વાંધો નથી. તો વાંધો નથી ને. જીવનમાં ક્યારે પણ અનિત્યતાનો ભરોસો કરીશ. બહારમાં પણ કોઈ બોલે ફરી જતો એનો કોઈ ભરોસો કરતા હોય છે? તો આપણે કોના ભરોસે અહીંયા જીવન જીવીએ છીએ? અનિત્યતાના, નાશવાનના. અને એટલે 12 ભાવનામાં સૌથી પહેલી કઈ ભાવના લીધી? અનિત્ય ભાવના લીધી. પણ એ મોટામાં મોટું દુઃખ છે કે અનિત્ય ભાવના બોલતી વખતે પણ એની અનિત્યતા નથી લાગતી. કોકનું ભલે નહીં, ચાલો ત્યાં સુધી તો નહીં, પૂજામાં બોલતા હોય છે દેવશાસ્ત્ર ગુરુની કેવલ રવિ કિરણોમાં, એની જયમાલામાં શું કઈ ક્યાંથી 12 ભાવના શરૂ થાય છે ને, બીજી કડીથી. ક્યારે પણ ઘણી વાર બોલતા હશે, ક્યારે કોઈ અનિત્યતા લાગી છે સંયોગની?
જીવનમાં અનિત્યતા લાગશે નહીં તો એનું એકત્વ નહીં છૂટે, અને જેની અનિત્યતા લાગે એનું મમત્વ એકત્વ છીટા વગર રહેશે નહીં. કોઈ એક મકાનમાં રહીએ છે, વર્ષોથી રહીએ છે, હવે સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયર આપણને આવીને એમ કે ભાઈ આનો હવે ફાઉન્ડેશન એવું વીક થયું છે, ક્યારે પણ પડી જાય એનો ભરોસો. હવે શું કરશું? કાંઈ વાંધો નહીં, એમાં શું છે, રહેશું. અમે શું કરશું? શું મરણનો ભય બીજું મકાન ગોતવા તરફ લઈ જશે. શા માટે? અત્યાર સુધી નિરાતે રહેતા હતા, હવે શું થયું? અનિત્યતા. અનિત્યતાના ભયમાં એમ અહીંયા શરીરમાં નિરાતે બેઠા છે. કારણ કે શું કામ બેઠા છે નિરાતે? કારણ કે તો બીજાનું મરણ થાય છે, મારું થોડી થવાનું છે. અહીંયા મુંબઈ હોય તો કયું છાપું વાંચતા દરરોજ? હા, શું કામ વાંચતા? હાજર, સરસ છે. કેવું વાંચતા હતા? બધાને માટે જ, બધાને માટે, એમાં કોઈ ચિંતા ન કરવી. પણ ક્યારેક કોઈ દી વાંચતા એમ થયું છે કે બીજાના સમાચાર હું વાંચું છું, મારા સમાચાર કોઈ બીજો વાંચી શકે? એ વાત નથી આવી. જીવનમાં બીજાની દૂરની આપણે આપણા ભાવોનો વિચાર કરવા જેવો છે. અનિત્યતા, નાશવાનપણું, ક્ષણિકપણું જો લાગશે તો એના પ્રત્યે એને મોહ ભાવ છૂટા વગર. અરે ક્યારે પણ કોઈ આઈટમ લેવા જઈએ છીએ તો એની પહેલા શું આપણે ચકાસણી શેની કરીએ? ડ્યુરેબિલિટી, એનું ટકાઉપણું છે કે નહીં. ગુજરાતીમાં માટે શું કહેવાય? નહીં, બે આનાની તાવડી નહીં, ટકોરા મારી લીધો. હવે એવું બધું રહ્યું ને એટલે ક્યાં ખબર પડે? પણ એટલું તો હોય ને, ડ્યુરેબિલિટી હોય ને. કોઈ સેલ્સમેન આવીને એવું કે ભાઈ આ મશીન છે ભાઈ, ભરોસો નહીં, ક્યારે બગડી જાય, એ કોઈ લેશે? કોઈ. એક સામાન્યપણે પણ એક નિત્યતા જોવે છે આપણને, અને જ્યાં અનિત્યતા હશે ત્યાં નિશ્ચિતપણે શું હશે? અસરણપણું. 12 ભાવનામાં એટલે બીજી છે ને, એક સિક્વન્સમાં છે બધી. જ્યાં જ્યાં અનિત્યતા છે ત્યાં ક્યાંય સરળ મળવાનું, અને અસરણપણામાં દુઃખ ન હોય તો બીજું શું? બાકી બધી જ્ઞાતિ એ પ્રકાર છે. અહીંયા આપણે ફરીથી પહેલું શું લીધું? અબદ્ધ અને અસ્પર્શ. અત્યારથી એવી ભાવના થવી જોઈએ કે હું મારા સ્વભાવથી, હું મને જ્યાં સ્વભાવને જોઉં છું ત્યાં મને કોઈ પણ કર્મનો બંધ દેખાતો, અને જો દેખાતો હોય તો મારી પાસે શુદ્ધ નહીં નથી, અને શુદ્ધ નહીં નથી તો સ્વભાવ નજરમાં નહીં આવે. આવી એક શરૂઆત કરવા જેવી છે. અનાદિકાળથી પોતાને કર્મથી બંધાયેલો માનીને પામરપણામાં અટક્યા છે. હું વર્તમાનમાં અત્યારના કેવો છું? કોઈને આશ્ચર્ય લાગશે કે આવું કાંઈ હોય? આખું કર્ણાની તમે વાંચી લો, ક્યાં સુધી કર્મનો બંધ છે? ક્યાં સુધી? 14મા ગુણસ્થાન સુધી. અને આપણે હજી કેટલામાં છીએ? આવું હોય 14મા સુધી કર્મનો બંધ છે, અને તમે કયો અત્યારથી નથી. આ જ સ્વભાવ દ્રષ્ટિનું શું છે? આ બળ છે, ચમત્કાર છે. સ્વભાવની દ્રષ્ટિ કરે અને હું બંધથી રીત અબંધ છું, ક્યારે હોશમાં આવી શકે ને? કોઈ કે તમને કોઈ બંધ નથી, કોઈ ગુનો કર્યો હોય, જેલમાં પૂર્યા હોય, અને એની સારી જેને કે ને કંડક્ટ હોય તો એને વહેલો કદાચ છોડી દેતા હોય, એમાં કોઈ એને કે ભાઈ તમને વહેલા છોડી દે તો દુઃખી થાય કે રાજી થાય? કોઈ પણ કેદીને જેલમાં પૂર્યો હોય અને એને છોડી રાજી થાય? દુઃખી થાય? ના ના, ફરીથી કરે, ના મને શું કામ વહેલો છોડો છે, એમ કરીને અપીલ કરે. નહીં. એનું ગુરુદેવથી દ્રષ્ટાંત આપતા ખબર નહીં. ગુરુદેવનું દ્રષ્ટાંત સિદ્ધાંત તો નહીં, આટલું. આખી રાતનું વાછરડું એ બંધાણું હોય, અને સવારના એનો ગોવાળ આવે, દૂરથી આવતો દેખાય તો શું વાછરડું શું કરે? નહીં, વાછરડું તો ખબર પડે ગુજરાતી, ખાવ કાફ કાફ કે ને, કે એને કૂદકા મારે, એવા કૂદકા મારે ઓલા છોડવું છે. એક હજી 12 કલાકના બંધનથી છૂટવાનો જો સમય આવે, એટલો આનંદિત થાય.
અને આપણને અનંત કાળના બંધનથી છૂટવાનો આ જીનવાણીમાં માર્ગ આવે અને અંદરનો ઉત્સાહ ન આવે, તેનો અર્થ શું થયો? હજી હું સમ્યક દર્શનને પાત્ર પણ થયો નથી. બંધન ગમે છે તો સમજી લેવું, હું છૂટવાને પાત્ર નથી, એટલે સમ્યક દર્શનનો હજી પાત્ર નથી. અંદરની એક ભાવના કે ઓહો હું કેવો છું, આચાર્ય મને કેવો કે છે કે તું કેવો છું? અબંધ સ્વભાવી છે, તું મુક્ત સ્વભાવી. અત્યારના તું છો તે પ્રગટ નથી કર્યો એ મોટી ખેદની વાત છે. બાકી તારને મુક્ત થવાની ભાવના છે, તું મુક્ત સ્વરૂપ છો, તો પુરુષાર્થ કેમ નથી કરતો? ભૂખ લાગી છે, ભાવતું ભોજન તૈયાર સામે ભાણામાં છે, શું થાય? શું થાય? ખાવાનું જો મન નથી કે સમજી લેવું, તને ભૂખ જ ખરેખર લાગે. એમ અહીંયા આપણને દેખાડે. એવી જ રીતે હું નો કર્મથી કેવો છું? સ્પર્શાયેલો નથી. શરીરની હું ક્યાં છું? શરીરની અંદરમાં છું કે શરીરની બહાર છું? અંદરમાં છું કે બહાર? એટલી ખાલી વાત આપણે પોતાનો જવાબ, ઓલો ઓબ્જેક્ટિવ ઓપ્શન ખાલી બે જ આપ્યા હોય, વધારે ન. ત્યાં શરીરની અંદરમાં છું કે બહારમાં છું? શરીરની અંદર, શરીરથી બહાર. અરે શરીરમાં કે શરીરની બહાર? મને શરીર જ દેખાતું. શું છે? શરીર દેખાય તો પ્રશ્ન થાય ને. મને શું નથી દેખાતું? શરીર. સ્વભાવની દ્રષ્ટિમાં શરીર, અરે જ્યાં આગળ આવશે ગુણભેદ દેખાતા નથી, અને તને હજી શરીર નજરમાં આવે. બહિર્તામાં સ્થૂળ દ્રષ્ટિમાં આ મોહ બુદ્ધિએ તને શરીર દેખાય છે. અહીંયા તો સ્વભાવ દ્રષ્ટિમાં શરીર જ નથી, પછી અંદર કે બહાર? આ એક દ્રષ્ટિ કેળવવી પડશે, એની પાછળ પુરુષાર્થ જશે. શબ્દો ભલે બોલી લઈએ છે, વિકલ્પ કરી લે, પણ એક અંદરમાં શું થવી જોઈએ? ભાવનાની દ્રઢતા માટે મહાપુરુષાર્થ. આ કેવું આશ્ચર્ય લાગે! શરીર સહિત છું તે વખતે શરીર રહેતું, આ તો એનું નામ તો પુરુષાર્થ છે. સ્વભાવ દ્રષ્ટિ એનું નામ શુદ્ધનય છે. અને એવા શુદ્ધનય વગર ક્યારે પણ મોક્ષ માર્ગનો સુમેળ થવાનો શરૂઆત પણ નથી થવાની. અરે વિચારણામાં નહીં લે તો પાત્ર પણ નથી થવા. એક સરસ છે આમાં સમયસારમાં એક મંગલાચરણ કરવામાં આવે છે ને. મંગલાચરણ એ કેટલા પ્રકારે હોય છે? 3 પ્રકારે હોય છે: આદ્ય, મધ્ય અને અંત. આદ્ય મંગલાચરણમાં તો વંદિત સર્વ સિદ્ધેશને કર્યું છે. હવે મધ્ય મંગલાચરણ આમાં ક્યાં છે? ક્યાંય સમયસારમાં વાંચ્યું તો હશે, પણ કોઈ એમ ન કે અમને યાદ નથી, કેવું બધું કેટલું બધું યાદ રાખીએ, કઈ ન રહે. અને એમાં આપણે જે શુદ્ધનયની વાત આવે છે ને, એવી જ એમાં છે. એટલા માટે જો આપણે જેની પાસે શાસ્ત્ર હોય કે તમે પાનું પણ તમે કાઢી શકો છો. આશ્રવ અધિકારની છેલ્લા કળશો પાસે જે 282 પાનું છે, અને કળશ 122 નંબરમાં છે. આશ્રવ અધિકારની છેલ્લી ગાથાઓ 179 ને 180 પછી 282 પાનું છે. 180 ગાથા પછી 222. ગુરુદેવસિંહ એટલે આપણને એક ટેવ પડાવી હતી. શું ટેવ પડાવી? શાસ્ત્ર સાથે રાખવાનું. જયારે પણ સ્વાધ્યાય ગુરુદેવસિંહ નું ચાલતો હોય ત્યારે ઇન્સિસ્ટ કરતા હોય ગુરુદેવ, કેમ શાસ્ત્ર નથી? અને એનું પેલાના જમાનામાં ખબર કોણ શાસ્ત્ર ની બધું કોણ રાખતા હતા ધ્યાન? છે કે નથી? નહીં, ગુરુદેવ નું પ્રવચન હોય ને ત્યારે શ્રોતા માટે શાસ્ત્ર પેડા હતા ને, લઈને આપણે બેસતા ને, એ તો ખબર છે. ત્યારે કોણ ધ્યાન રાખતા હતા બધું છે કે નથી ને એવું? કોઈ નહીં જૂનું ખબર? તપસીજી તો ખબર છે. એ બધું ધ્યાન રાખતા પેલા શરૂઆતના વર્ષોમાં. એ તપસીજી હોય, ગુરુદેવ ન હોય તો ગુરુદેવસિંહ કે આટલા બધા આવ્યા છે, કેમ શાસ્ત્રો કાઢ્યા? ગુરુદેવની આ ઇન્સિસ્ટ શું કામ હતી? ગુરુદેવસિંહના નાનપણમાં પોતે જયારે ભણતા હતા ત્યારે પોતે એને ટીચર ને બધા હોય, પોતે એના ટીચર એમ કે હોશિયાર છોકરા તમે આ વાંચીને લાવો છો, અને હવે એમાં હું અર્થ શું કાઢું છું એ તમે
જોજો શું ફરક પડે. મેળવણી તો સામે સાસરો હોય તો મેળવણી થાય ને. બીજું એક, ગુરુદેવસિંહ જયારે દુકાનમાં હતા ત્યારે ઘણી વાર ભરૂચ ને એની વાત કરતા ને, સાંજ પડે ફ્રી ટાઈમ હોય તો ક્યાં જતા? નાટક જોવા જતા ને. ત્યારે શું કરતા? નાટક જોવા જાય ત્યારે બુક પેલા લેતા હતા, બાઇક પેલા ટિકિટ તો લે નાટકની, અને ત્યારે ડાયલોગની એટલે સંવાદની ત્યારે શું આપે? બુક આપે એક્સ્ટ્રા. એ પણ પોતે લેતા. કેમ એવું કેમ લેતા? આજો એક એક તમે શું બોલો? ગુરુદેવસિંહના જીવનમાં કેટલું બધું શીખવાનું જો જોઈએ તો ગુરુદેવસિંહને નાટકમાં શું જોવું હતું? નો ડાઉટ ખાલી વૈરાગ્ય ના હોય એવા જ જોવા જતા, બીજા કોઈ પ્રશ્ન જ ન હોય. પણ એમાં પણ ગુરુદેવસિંહ શું જોતા હતા? સામાન્યપણે આપણે શું જોતા હોય? એની ડિલિવરી હોય અને એની એક્શન જોતા હોય. જનરલી એ જ હોય ને, એના પર ફોકસ હોય છે ને. ગુરુદેવસિંહ કે અમારે એવું નથી, એ શું બોલે છે, એનો અલ્ટિમેટ એમાંથી શું મેસેજ. તો એની બુક સામે હોય તો અમે પહેલી કરે એટલા માટે પોતે બુક લેતા. અને ક્યારે ખબર છે કેટલા વર્ષો પહેલાના ગુરુદેવસિંહ જોયેલા નાટકો, એના આજે શું હોય? સંવાદ અથવા એમાં કઈ ગીતની કડીઓ કેટલા વર્ષો પહેલાની ગુરુદેવસિંહને યાદ હતી. બોલતા હતા ને. ओके, नहीं अभी अपने ये 122 नंबर तक गुरुदेवसिंह के जीवन में सीखना है कि सिर्फ वो कोई नाटक आदि देखते थे, इसमें कोई कैसे डिलीवरी करते हो, क्या एक्शन है, वो नहीं. इसमें कोई हमें से क्या मिलेगा? वैराग्य जैसे है ना. इस सरस से गुजराती में तो है, देखा नहीं कुछ सार जगत में, देखा नहीं कुछ सार. उसी समय प्रलय ऐसे कि बाह्य संयोगों में कहीं भी मुझे सुखमय ऐसी कोई दशा सारभूत नहीं मिला है. इसी प्रकार से वैराग्य नाटक. तो अहिया हमें शास्त्र इसलिए साथ में, क्योंकि साथ में मिलान कर सकते हैं कि जो विषय चलता है उसके अनुरूप है कि नहीं. चलो हमें जो देखना है 122 नंबर का कलश है, 282 पेज नंबर है, और आश्रय अधिकार की 179 180 गाथा के बाद में है. उस जो कलश है उसका टाइटल पढ़ते हैं. अब यह सर्व कथन के तात्पर्य श्लोक कहते हैं. ये जो यहाँ तक जो भी कथन आया पूरा गाथा नंबर 1 से लेकर जो यहाँ सभी आया, उसका हम क्या करते हैं? आप तात्पर्य समझते हैं ना. हिंदी में भी शब्द ऐसे तात्पर्य माने अल्टीमेट मैसेज क्या देना, समरी करना है, एसेंस करना है. इसमें क्या तात्पर्य क्या है? चलो हम वो पढ़ते. यहाँ यही तात्पर्य है कि पूरे समय सार का ले और अब तक का ले लो, कुछ भी ले लो. यहाँ यही तात्पर्य है कि शुद्ध नहीं, त्यागने योग्य नहीं है. शुद्ध नहीं माने किसकी? जो यहाँ चर्चा चल रही है 14वीं गाथा में. और शुद्ध नहीं कभी त्यागने योग्य है नहीं है, लेकिन कभी कभी त्यागने योग्य नहीं. कभी भी एक समय भी त्यागने योग्य नहीं है. यदि साधक दशा में एक समय भी शुद्ध नहीं छूट गया तो क्या होगा? मिथ्या दृष्टि हो जाएगा. देखो ये सीखना है पूरा तात्पर्य. समय सार का पूरे तात्पर्य ले लो, या यहाँ तक का भी ले लो, कोई भी ले लो. शुद्ध नहीं कभी भी त्यागने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य नहीं है. जैसे कभी भी कोई समुद्र में, जिसमें वो माने बोट है, इसमें बैठे थे, वो बोट है वो बुड़ने जा रही है, तो इसमें उसको क्या देते हैं? लाइफ जैकेट और सब देते हैं ना सब. हाँ, और जैकेट या तो पहले नहीं थे तो क्या इसमें इसके हाथ में कुछ एक लकड़े का टुकड़ा आ गया हाथ में, तो उसको कैसे पकड़ के रखेगा? कस के पकड़. क्यों? वो पूरा आधार है. यदि वो छूट गया तो मैं, तो एक डूबने के भय से, मरण से भाई तू पकड़ के रखता है. तो यहाँ कहते हैं कि तेरे जन्म मरण का सभी दुख मिटाने वाला है. भव समुद्र में तुझे बचाने वाला कोई है तो शुद्ध नहीं. शुद्ध नहीं कभी भी त्यागने योग्य
नहीं, और वही शुद्ध नहीं की चर्चा कहाँ चल रही है हमारे 14वीं गाथा में, है ना। तो यहाँ एक और आगे, क्योंकि उससे अत्याग से कर्म बंद होता नहीं। किसके? शुद्ध नहीं। अत्याग, शुद्ध नहीं का अत्याग माने कभी नहीं छूटेंगे, माने उसका ग्रहण करके रखा। यदि तूने शुद्ध नहीं का त्याग नहीं किया और उसको पकड़ के प्रकट रूप से रखा, तो क्या लिखा है? कर्म बंद होने वाला नहीं है। और यदि तूने त्याग किया तो क्या लिखा है? बंद ही कथनचित बंद होगा। कथनचित नहीं, जैन दर्शन में तो कथनचित ही होता। नहीं, कथनचित में जैन धर्म में ही नहीं होता, एकांत नहीं होता है। जैन धर्म में क्या होता है? सर्वथा होता है या कथनचित होता है? एकांत होता है या अनेकांत होता है? अनेकांत नहीं होता है। हाँ, तो फिर अनेकांत है तो अनेकांत एकांत कहाँ से आया फिर? दोनों होता है। अच्छा, और दोनों अनेकांत भी अनेकांत है। अनेकांत और एकांत। हाँ, वही इसलिए मैं कहा ना, अनेकांत भी अनेकांत। कोई बात नहीं, देखिए फिर से, नई में एकांत है और प्रमाण में अनेकांत। नई में क्या है? एकांत है। जहां शुद्ध नई में ग्रहण किया था आत्मा शुद्ध ही दिखेगा, क्योंकि नई का काम एक ही धर्म को ग्रहण करना है। अनेकांत प्रमाण में है, अस्ति नास्ति, इसलिए वहां प्रमाण में कथनचित है और नई में सर्वथा है। पुत्र की अपेक्षा साम व्यक्ति वो कथनचित पिता है या पूर्ण पिता है? नहीं, वो तो है ना, किसी का चाचे भी है, भतीजा है सामने व्यक्ति, तो दूसरे के लिए होगा। मेरे लिए तो वे कैसे है? सर्वथा पिता है। ऐसे ही नई में क्या होता है? सम्यक एकांत है। और प्रमाण में क्या होता है? सम्यक अनेकांत। तो यहाँ आचार्य देव ने, अमृत चंद्राचार्य देव ने दो छोटे से लाइन में पूरा के तात्पर्य दे दिया समय साथ, है ना। पूरे ऊपर जो कलश है इसमें कितनी लाइन है? दो ही है, छोटी सी है। एवं एवं एव अत्र तात्पर्य, यहाँ हम यही तात्पर्य क्या है? शुद्ध नयो हेय नहीं, शुद्ध नहीं कभी भी है ही नहीं है, त्याग नहीं योग्य नहीं है, क्योंकि उनके अत्याग से कभी तुझे बंद होगा। आचार्य देव गारंटी देते हैं हमें कि यदि तूने शुद्ध नहीं छोड़ा तो समझ लेना तुझे कभी भी बंद होने वाला नहीं। अरे छोड़ेगा तो बंद हुए बिना रहेगा नहीं, और यदि नहीं छोड़ेगा तो निश्चित रूप से कभी बंद नहीं होगा। यदि तूने छोड़ा तो निश्चित रूप से बंद हुए बिना रहेगा नहीं, और यदि नहीं छोड़ा तो समझ लेना नहीं होगा, नहीं होगा। समय दृष्टि को बंद है कि नहीं? हाँ, है ना, भूमिका अनुसार। मैं कहाँ बोल, है ना। तो शुद्ध नहीं उनके पास है कि नहीं? अंदर नहीं, बंद स्वरूप है, उसको बंद होता ही नहीं होता है। नहीं, मान्यता में नहीं है ना। अरे अभी तो है, अभी तो ये इस भव तद्भव वो कमी नहीं है, ताइस भी बंधेगा, अभी दूसरा भव भी आएगा। बंद और है, अभी तो बंद में पड़ा। और अभी क्या 8 कर्म में एक अनंतानुबंधी गया है और एक दर्शन मोह गया है, और तो सब बाकी है कि नहीं? बंद में पड़ा। तूने ज्ञानी को ज्ञानी रूप से देखा ही नहीं, तुझे ज्ञानी भी बंद रूप दिखते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में कुछ फर्क ही नहीं। तो अज्ञानी भी किससे दिखते हैं? बंद में दिखते हैं। और ज्ञानी भी किससे दिखते हैं? तूने क्या फर्क किया? अरे ज्ञानी को जो बंद है ना, उसमें सामर्थ्य नहीं है कोई उसको अनंत काल परिभ्रमण करा। क्या है? वो मर्यादित हो गया। उनका जो परिभ्रमण था, बंद था, उसका काल कैसा होता है? मर्यादित हुआ है। अरे कम से कम तेरी अपेक्षा तो इसके ज्ञानी अबंध है। कहीं आचार्य इतना जोर बताते शुद्ध नहीं का, कि शुद्ध नहीं कभी भी त्याग नहीं योग्य नहीं है, क्योंकि उसका त्याग करेगा तो बंद हुए बिना रहेगा नहीं, और उसका त्याग नहीं करेगा तो कभी तुझे बंद होने वाला नहीं। तो वही शुद्ध नहीं की चर्चा हमें 14वीं गाथा में
ये कहने का तात्पर्य पूरे समय सार में सुधरने की मुख्यता से आचार्य देव ने ये बात बताई कि जीवन में हमने कभी भी ये शुद्ध नहीं क्या है प्रकट किया है कि नहीं है, कभी भी प्रकट नहीं किया है, कभी भी नहीं किया। अरे प्रकट किया होता तो यहाँ नहीं होते। अभी जीवन में इतना जैसे आगे आता है ना ये समय सार में ये कलशों के बाद में आज कि मरण जैसी प्रतिकूलता हो तो भी क्या है तत्व तक ही वो तुलता मत छोड़ना। तत्व ये मेरा ऐसा कौन सा तत्व है कि जहाँ एक अनुभव होते ही मैं अभी भव से रहित हूँ, ऐसी अंदर भावना जागृत। ये स्वभाव का बल कम से कम उनका कुतूहल तो कर। मरण जैसी बाय में प्रतिकूलता हो तो भी यहाँ कहते हैं तुझे स्वभाव की महिमा कभी छोड़ने योग्य नहीं है। तो अभी चौथा बोल रहे थे, चौथा बोल कौन सा है? मध्यम मंगलाचरण हाँ जी, अब गुरुदेसी का प्रवचन सुन लेना, इसमें आएगा गुरुदेसी के प्रवचन में कि क्या है मध्यम मंगल, मध्यम मंगल है। इसलिए क्या है ना ये सबका तात्पर्य कहा तो मंगल में तात्पर्य है ना, शुरुआत में तो नहीं है कि ऐसे हम कहेंगे, लेकिन अंत में क्या आएगा कि ये पूरा मंगल है। जैसे 14वीं 415 गाथा में अंतिम मंगल में क्या कहेंगे कुनकुना, क्या उसकी बात क्या है? आ समय प्रावृत पठन करीने अर्थ तत्वती जानीने ठरसे अर्थ मा आत्मा जे सौख्य उत्तम। तो वहां भी मंगल में रूप किया ना कि ऐसे हम जो कह रहे हैं उसके भाव में तू स्थिर हो जा तो तुझे उत्तम सुख प्रकट होगा। तो ऐसे ही हमें बताते कि तूने यदि शुद्ध नहीं छोड़ा तो कभी तुझे बंद होने वाला नहीं है। तो मंगल रूप से यहाँ मध्य मंगल। तो यहाँ फिर चौथा बल कौन सा है अभी? विशेष रहित। विशेष माने गुण भेद, क्योंकि पर्याय भेद की बात आ गई। पर्याय भेद की बात कौन सी आ गई? दूसरे और तीसरे बोल में। दूसरे बोल में कौन से पर्याय की बात आ गई? व्यंजन पर्याय। तीसरे बोल में किसकी बात आ गई? अर्थ पर्याय। और अभी यहाँ कौन से लेते? गुण भेद। द्रव्य से देखो तो मैं सामान्य एक रूप हूँ और गुण से देखो तो मैं कैसा हूँ? गुण अलग अलग है, भेद है, इसलिए उसको विशेष कहते हैं। और पदार्थ सामान्य विशेष स्वरूप। गुण को आप सामान्य कहो तो पर्याय उनके विशेष हो जाए। आता है ना ऐसा क्रम? क्या क्रम आता है? दूसरे शब्दों में पूरे विश्व को लहो तो आप क्या है? महासत्ता कहते हैं। और उसमें द्रव्य को क्या कहेंगे? अवांतर सत्ता। और द्रव्य को महासत्ता कहो तो गुणों को अवांतर सत्ता। गुण को महासत्ता कहो तो पर्याय को अवांतर सत्ता। पर्याय को महासत्ता कह सकते हैं? नहीं, पर्याय को कह सकते हैं। पर्याय को महासत्ता कहो तो अविभाग प्रतिषेध को अवांतर सत्ता। क्रम ऐसे पर्याय, क्योंकि एक पर्याय में कितने अविभाग प्रतिशत है? अनंत होते हैं ना। तो पर्याय को महासत्ता कहो तो अविभाग प्रतिशत को क्या कह सकते हैं? अवांतर सत्ता। और अविभाग प्रतिशत को क्यों अंध का? महासत्ता नहीं कहेंगे, उसके भाग ही नहीं बचे। अरे उसका नाम ही बताया अविभाग है तो उसका भाग नहीं है तो फिर अवांतर कहाँ से? अव अंतर, दो शब्द फर्क पड़ते हैं। अव अंतर, दो अंतर माने डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एक में होते दो में होते। तो जहाँ अविभाग है, भेद ही नहीं है तो फिर अवांतर कहाँ से आएगा? नहीं आવું બધું થોડું વિચારવું પડતું ના ના મગજમારી તો દુનિયામાં ઓછી કરી, અહીંયા આવીને મગજમારી। देखिए फिर से, कभी भी जब तक वस्तु स्वरूप का यथार्थ विचारणा नहीं है तब तक हम सही गलत क्या है उसका निर्णय तक नहीं पहुंचेंगे। सम्यक दर्शन होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? 5 लब्धियां है ना, इसमें भी होते हैं ना, इसमें भी क्या है? 5 लब्धि में कौन सी है? सर्वप्रथम कौन सी है?
क्षोभसम 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 माने ज्ञान का उगाड़, हाँ ज्ञान का उगाड़, तो वो तो एकेंद्रीय में है, चतुरेंद्रीय में भी है। लेकिन लब्धि नहीं, हाँ तो लेकिन तो फिर कौन सा क्या चाहिए वहाँ? क्षोभसम लब्धि में क्या चाहिए? ज्ञान का उगाड़ तो है, लेकिन कौन सा? संगनीपना चाहिए। संगनीपना नहीं है तो वो सम्यक दर्शन के लिए पात्र ही नहीं है, क्षोभसम लब्धि ही नहीं है, फिर तो आगे की बात ही नहीं है। क्षोभसम लब्धि के बाद क्या होनी चाहिए? विशुद्धि लब्धि, विशुद्धि लब्धि के बाद देशना लब्धि, इसके बाद प्रायोग लब्धि, विचारणा है। हमारे सामान्य रूप से क्या होता है? साफ गुजराती में बोली दे, साफ गुजराती में લખેલો વાંચો ને કહેલો સાંભળવું, પછી વાત પૂરી। विचारणा चलनी चाहिए कि जिन वाणी में क्या लिखा है, गुरु वाणी में क्या आया है, उसके पर क्या चलनी चाहिए? थॉट प्रोसेस, विचारणा। विचारणा के बिना कहीं निर्णय तक पहुंच पाएंगे नहीं, और निर्णय तक नहीं पहुंचे हैं तो अनुभव तक नहीं पहुंचेंगे। ये हम संगनी प्राणी है, संगनी प्राणी है तो विचारणा जैसे बाय में करते हैं ऐसे ही यहाँ तत्व विचारणा। अब बनारस दास जी का एक पद शायद याद होगा, नाटक समय सार में, अनुभव क्या, अनुभव के लिए क्या किया? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको। ताको याको जो भी, तो प्रथम क्या किया? प्रथम कहाँ से लिया? वस्तु विचार। अपने आत्मा को पूछ लेना, मैं वस्तु की विचारणा तक कहाँ तक? सुनने से संतुष्ट हो जाता हूँ, पढ़ने से संतुष्ट हो जाता हूँ, कभी विचार तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और उसमें भी सोचना है। वस्तु विचार शब्द लिखा है ना, तो उसका अर्थ क्या हुआ? वस्तु विचार, तो विचार में कौन आएगा? इंद्रिय आएगी या मन आएगा? इंद्रिय नहीं, मनती विचार करेंगे, लेकिन आएगा तो आत्मा का वस्तु। वो तो है ही, लेकिन इंद्रिय, प्रश्न इंद्रिय है या मन है? अरे मन में तो सामर्थ्य ही नहीं है आत्मा का विचारणा करे, वो इंद्रिय का काम नहीं है। इंद्रिय कहाँ तक ले जाते हैं? इंद्रिय का काम क्या है? इंद्रिय मात्र पुद्गल, पुद्गल में भी कहा, स्कंद में, स्कंद में भी कहा। स्कंद के कितने प्रकार है? 6 प्रकार। ऐसे तो 22-23 वर्णगणा के रूप में, लेकिन स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, ये 4 तक ही जाती है। इंद्रिया सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म तक जाती ही नहीं। आत्मा अनुभव के लिए पात्रता भी इंद्रिय से नहीं है, कहाँ से है? विचारणा। और विचारणा में क्या है? मन होता है। इसलिए बनारस के जब तक 5 इंद्रिय के तक उपयोग है अपना, कि चलो हम ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए तो क्या है? एकदम अंधेरा लगता है, तो तूने आत्मा की पात्रता भी वहां तक भी नहीं पहुंचे, विचारणा तक नहीं। वहां कुछ अच्छी हवा लगती है, ठंड हवा, कूल ब्रीज आती है, उपयोग कहाँ गया तुझे? स्पर्श इंद्रिय में गया, अजय विचारणा में भी नहीं आया। विचारणा में नहीं आया तो उससे मन पावे विश्राम शब्द आया ना, तो विचारणा में क्या था? मन था। और अभी पुरुषार्थ बढ़ता है तो क्या होता है? मन पावे विश्राम, प्रायोग लब्धि से आगे, और तभी अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। रस स्वादत अनुभवता को, तभी आस्वादन में आनंद का वेदन आता है, उसका नाम होता है। तो यहाँ क्या लिया है? विशेष रहित। विशेष रहित माने किसकी चर्चा है? गुण भेद की, क्योंकि ये सब तो पर्याय भेद आगे तो राग की तो बात ही नहीं है, पर्याय भेद ही छूट गया, अभी गुण भेद भी। ये थोड़ा आश्चर्य नहीं लगता है? आत्मा में कितने गुण है? उसमें ही नहीं है, अनंत गुण है, और आप बोलते कि अभी गुण भेद से आत्मा में यही है। छद्मस्त हो, यदि गुण भेद पे लग जाएगा तो निरिकल दशा नहीं होगी, और निरिकल दशा के बिना
शुद्धोपयोग के बिना सम्यक दर्शन का जन्म नहीं, शुद्ध नहीं का प्रगटपना नहीं होगा। तो शुद्ध नहीं आत्मा को कैसे देखते हैं? विशेष रहित, भेद रहित, गुण भेद रहित, अभेद एक रूप अखंड आत्मा को ग्रहण करता है। अभी आखिर में कौन सा बोले? अभी क्या लिखा है यहाँ? असंयुक्त, अन्य के संयोग रहित। अन्य के संयुक्त छूट गया पहले, यहाँ अभी कैसे ले? असंयुक्त है। और असंयुक्त में अमृतचंद्राचार्य लेते हैं कि मोह भाव से रहित। और मोह भाव में भी वेदन, आकुलता का वेदन। अनुकूलता और प्रतिकूलता में हर्ष सोलह तो सुख दुख का वेदन। देखो उसमें भी कुछ फर्क किया। क्या फर्क किया? आखिर में जो असंयुक्तपना है ना, इसमें देखो लिखना पढ़ना है तो देखना है। इसमें देखो पेज नंबर 40 देखना है तो भावार्थ में देखते हैं। पेज नंबर 40 है, इसमें थर्ड लाइन में फिगर है ना 5, उसमें देखिए पढ़िए। कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणाम सहित वे सुख दुख दिखने में आता है। ये सब मिला 5 नंबर के बाद मिला। तो ये किसकी बात आ गई? सुख दुख रूप में किसकी बात आ गई? वेदन रूप भाव, भोक्ता भाव। आगे जो आया दूसरे और तीसरे में किसकी आया? कार्य रूप, कर्म रूप, परिणाम। और यहाँ कौन सा आया? वेदन रूप, भोक्ता रूप का भाव आता है ना। 2 प्रकार होते हैं ना, एक कार्य रूप के परिणाम और एक भोक्ता रूप के परिणाम। तो यहाँ सुख दुख तो स्वभाव तो कैसा है? अनाकुल आनंद रूप है। ये बाय में जो हरक सुख होता है वो तेरा स्वभाव स्वरूप नहीं है। सुख कैसे कहते हैं? सुख कैसे कहते हैं? हमें जो अच्छा लगे वो सुख है। इसमें क्या और किसी को पूछना? नहीं ना, हमें अच्छा लगे नहीं, हमें अच्छा लगे सो सुख है। हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य हो दुख रूप होता है, सुख होता है। फिर से याद, इसे बोलना नहीं, हमारे इच्छा के अनुरूप, इच्छा से विरुद्ध नहीं। इच्छा से विरुद्ध हो तो दुख होता है, वो तो हम सभी मान, लेकिन इच्छा के अनुरूप। अरे हम इच्छा नहीं करेंगे तो ये लोग कोई R&D डिपार्टमेंट क्या है? नहीं, द डिजायर इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, ऐसा आता है ना? नहीं, इंग्लिश सारू है તમારે બધા આમાં જ લઈ જાય, ભોગતાના ભાવમાં જ લઈ જાય। अरे द डिजायर इज द मदर ऑफ ऑल अनहैप्पीनेस, आकुलता ही है। अरे इच्छा के अनुरूप नहीं, इच्छा ही स्वयं दुख रूप। फिर तुझे सुख कहाँ से मिला? जो इच्छा है, कोई भी इच्छा, पर इच्छा का उत्पन्न होना कभी होगा? किसी वस्तु की इच्छा हुई तो समझ लीजिए हमें इच्छा हुई कि भाई चलो कहीं 5,000 चाहिए मुझे, इसमें 3,000 है तो 2,000 की कमी है। तो 2,000 की कमी हमें सुख में से उत्पन्न हुई या थोड़े दुख में से उत्पन्न हुई? तो इच्छा का सद्भाव किसी के अभाव के दुख में होता है या सद्भाव में होता है? सुख। पूर्ण खा लिया पेट भर के फिर खाने की इच्छा तो नहीं होती। कुछ सद्भाव में नहीं है, किसी के अभाव में मुझे चाहिए, इसी दुख रूप दशा होती है। तो यहाँ तो दुख ही, यहाँ तो यहाँ कैसे? जहाँ दुख है वहां क्या है? आकुलता है। और आकुलता का नाम क्या है? दुख। हम हमारी कल्पना से मान लेते हैं मेरी इच्छा के अनुरूप होना, इच्छा से अनुरूप होना वो सुख की जाहिरात है या आकुलता की जाहिरात है? क्योंकि जो पदार्थ मिलना चाहते उसका तुझे वेदन करना है, तेरे पास नहीं है, वेदन नहीं होता है तो आकुलता होती है। सही माने में इच्छित वस्तु का प्राप्त होना सुख का वेदन नहीं है, साता का उदय है। क्या है? इच्छित विषय मिलना इच्छा के अनुरूप वो सुख का वेदन है कि साता का उदय है कि पुण्य का उदय है? 2 अलग बात है। साता का
उदय या पुण्य का उदय से पुण्य प्रकृति का उदय और सुख का वेदन अलग बात है। यदि पाप प्रकृति का उदय में यदि हम दुख माने तो उपसर्ग के समय मुनिराज को क्या है? साता का वेदन, असाता का वेदन। उदय किसका? पुण्य का, पाप का। लेकिन उसी समय उनको ततेंद्रिय आनंद का वेदन है। वेदन संयोग का होता नहीं है। वेदन किसका होता है? स्वभाव का या संयोग का? वेदन किसका होता है? स्वभाव का होता है। तो हमें अभी दुख का वेदन वो स्वभाव का वेदन है। आपने कहा किसका वेदन है? वेदन किसका होता है? संयोग का या स्वभाव का? दोनों का नहीं है। संयोग तो क्षेत्र भिन्नता है। वेदन का यदि संयोग का माने पुद्गल का वेदन जड़ का करने जाए तो स्वयं जड़ हो जाएगा। और स्वभाव का आशय होता है, वेदन प्रकट पर्याय का होता है। वेदन किसका होता है? स्वभाव का क्या होता है? आशय लिया जाता है। और संयोग का भेदनान होता है और प्रकट पर्याय का वेदन होता है। तो यहाँ हमें जो आखिर का बोले असंयोग, जिसको हम सुख दुख मानते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, उसका मुझे नहीं, मैं तो कैसा पदार्थ हूँ? सुखमय स्वभाव, अतीन्द्रिय पदार्थ हूँ। 46 शक्तियों में सुख नाम की एक शक्ति है, 5 में है ना सुख शक्ति। उसका अर्थ क्या दिया है? निराकुलता बताया। इसमें नहीं, अनुकूलता नहीं बताया। हमारी व्याख्या क्या हो गई? अनुकूलता सुख मानते हैं, सही माने में निराकुलता वो सुख है। निराकुलता में क्या? देखो, हम फिर से कौन सी आकुलता को स्वीकारते हैं? द्वेषमय प्रतिकूलता की समय। लेकिन अनुकूल सामग्री में राग का आकुलता को हम पहचानते हैं। राग की आकुलता को तो हम सुख मान बैठे हैं। सही माने में 3 पद्धति ले, 3 कुछ नहीं है तो उसके अभाव में आकुलता होती है। अभी वो मिल गया तो क्या होता है? भोगने की आकुलता है। और छूट जाए तो फिर छूटने आकुलता सभी जगह है। मिले नहीं मिले, मिला और छूट जाए, तुझे सुख कहाँ लगा? ऐसे ही यहाँ निराकुलता वो मेरा स्वभाव। इसी प्रकार 5 बोल से आचार्य देव ने किसका स्वरूप बताया? कभी का मेरा में, कभी का अभी का। अरे जीवन में एक बार इतना नहीं, मैं अभी भी स्वभाव दृष्टि से मैं देखना है। अभी मुझे स्वभाव प्राप्त करना है। स्वभाव का प्राप्त करूं, आनंद का वेदन करूं। जीवन में ये करना है। स्वभाव का स्वीकार करूं और आनंद का वेदन करूं। तो स्वभाव कैसा है? अबद्ध स्पष्ट हूं। फिर से अबद्ध स्पष्ट होना नहीं, हूं, फर्क है। चलो टाइम हो गया। होना में क्या दृष्टि कहाँ गई? पर्याय पे गई। और हूं में कहाँ गई? स्वभाव पे। अबद्ध स्पष्ट हूं, अनन्य हूं, नियत हूं, अविशेष हूं, और आखिर में संयोग माने सुख दुख से असंयुक्त। तो ऐसा अपने शुद्धात्मा का अनुभव करना, वही मनुष्य भाव में करने योग्य करता।